Everybody, welcome back to my channel. Today in this video I'll be discussing about journal pathology synopsis. This is the part 6, and in this video I'll be talking about different types of anemias and their features. And if you're new on my channel, I want to say that this channel is for those who are studying uh, their dental subjects as well as medical subjects and want to give any higher exams. You can watch all the videos. I'll be covering all the synopsis in this one channel. So currently I'm doing pathology. So in this video I'll be talking about anemias. So let's get started. Now the very first anemia is iron deficiency anemia. As you can see, all the important features have been mentioned in this table, and different types of anemias are there. So let's see to them one by one. Now, iron deficiency anemia, as the name is suggesting, there is deficiency of iron, okay, particularly iron, and because of that anemia is occurring. Now commonest cause of anemia is iron deficiency anemia. Very commonly iron deficiency anemia, like people who have anemia commonly have iron deficiencies. Now iron is absorbed mainly in duodenum and jejunum in the small intestine. So maybe because of less absorption of iron in jejunum and duodenum, there will be iron deficiency anemia. There can be other causes also. Now, ferritin and hemosiderin are the storage forms of excess iron. Okay, if the body has excess iron, they store that iron in the form of ferritins and hemosiderins. Now, iron is transported in plasma bound to transferrin, which is synthesized in liver. Now, when you have iron storages and you want to transfer your iron from one part to another, there is a transfer molecule, that is transferrin, which helps in binding of iron and helps iron to move from one place to other. So this transferrin protein that helps in transfer, that helps in transport, is basically synthesized in liver. So when the person is having liver disease and because of that transferrin is not being formed, this can also lead to iron deficiency anemia. Now, characteristics of triad of Palmer-Wilson syndrome. Now, Palmer-Wilson syndrome is very commonly asked. It has three things. It has iron deficiency, it has chylonychia, that is spoon-shaped nails, and it has hysterical dysphagia. Okay, hysterical dysphagia, which is predisposition for the development of carcinoma in the upper alimentary canal. Okay, जिन लोगों में अपर एलिमेंट्री कैनाल में कैंसर होता है उनमें सबसे पहले हिस्टेरिकल डिस्फेजिया देखने को मिलता है. एक टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन होती है जब खाना खाते हैं, फील होता है इसोफेगस में, दैट इज़ हिस्टेरिकल डिस्फेजिया. तो ये तीन चीज़ें होती हैं. एक तो हिस्टेरिकल फीजिया, या फिर आप देखो क्लिनिकली तो बेल्ब्स दिखाई देंगे आपको नेक एरिया में, ठीक है, फोल्डिंग्स दिखाई देंगी स्किन की, प्लस कायरोनेशिया दिखने को मिलता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है. तो ये सारी चीज़ें पल्मर-विल्सन सिंड्रोम में होती हैं. उसके बाद mucous membrane of oral cavity, the mucous membrane of oral cavity and the esophagus are atrophic and shows loss of keratinization. तो जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो क्या होता है, बेसिकली जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, ओरल कैविटी की कह लो या ईसोफेगस की कह लो, एट्रोफिक हो जाती है वो, प्लस उसमें केराटिनाइजेशन नहीं होती, केराटिनाइजेशन का लॉस हो जाता है. क्योंकि हमें पता है हमारी ओरल कैविटी में कुछ एरियाज़ केराटिनाइज होते हैं, कुछ नॉन केराटिनाइज होते हैं. बेसिकली जो मैस्टिकेटरी म्यूकोजा रहती है हमारी, वो केराटिनाइज रहती है. तो वहाँ पे जब केराटिनाइजेशन लॉस देखने को मिलता है, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सिम्टम. स्मूथ रेड पेनफुल टंग, ऐसे लोगों की आप टंग जब आप देखोगे तो आपको स्मूथ रेड कलर की दिखाई देगी, विद एट्रोफी ऑफ फीलिफॉर्म एंड फंगीफॉर्म पैपिला. ना तो फंगीफॉर्म पैपिला होंगे ना फीलिफॉर्म पैपिलाज होंगे. तो टंग जो है वो बेसिकली बिल्कुल बाल्ड रेड कलर की दिखाई देगी. अगर हम आरबीसी काउंट देखें उन लोगों में, तो आरबीसी काउंट नॉर्मली कितना होता है, 3 to 4 होता है. बट यहाँ पे जो है आरबीसी काउंट वो नॉर्मल है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो काफ़ी कम है. हीमोग्लोबिन फीमेल्स में 11.5 to 13.5 अप्रॉक्सीमेटली, और मेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14.5 इतना होता है. तो हीमोग्लोबिन काफ़ी कम देखने को मिलेगा.
लैक ऑफ रेडिकुलोसाइट रिस्पॉन्स फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ B12। B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेडिकुलोसाइट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे रेडिकुलोसाइट्स ज़्यादा रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे B12 को। लैक ऑफ फ्री HCl इन द स्टमक आर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। जो HCl रहता है बॉडी में, स्टमक में, जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो HCl जो स्टमक में रहता है वो बहुत कम होगा, उसमें आपको लैक दिखने को मिलेगा। Inocytosis, poikilocytosis and microcytosis of RBCs are the other features. Anisocytosis मतलब unequal shape, cytosis and poikilocytosis का क्या मतलब है, abnormal shape, microcytosis का मतलब है small shape। तो बेसिकली RBCs की शेप में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। टारगेट सेल्स हमें देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, जिसमें कि सेंट्रल पोर्शन जो रहता है टारगेट सेल का, दैट इज़ round stained area and peripheral rim of hemoglobin is seen. Peripheral there is a rim and बीच में एक central stained area आपको दिखाई देगा, बाकी सारा हैलो दिखाई देगा। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर टारगेट सेल्स जो रहते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। प्लस डिक्रीज्ड सीरम आयरन, सीरम में ऑब्वियसली आयरन कम है, सीरम में फेरिटिन लेवल्स भी कम होंगे बिकॉज फेरिटिन आयरन की डिपोजिशन होती है। प्लस टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ये जो 3 फीचर्स है ना, डिक्रीज सीरम आयरन, डिक्रीज सीरम फेरिटिन एंड इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज डायग्नोस्टिक फीचर्स फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर ये 3 चीज़ें हमको देखने को मिलती है तो प्रॉपरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्लस टारगेट सेल्स, ओके, प्लस लैक ऑफ HCl एंड लेस ऑफ हीमोग्लोबिन, plus different shapes, Palmer Wilson. All these features are the iron deficiency anemia features. Talking about sederoblastic anemia. Okay, now as the name is suggesting, sedero. Okay, so sedero is related to the iron. Okay, plus it's a rare linked disorder associated with defective enzyme activity of amino levulinic acid synthetase, which is required for heme synthesis. तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको बनाने के लिए हमें ALA एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ALA एंजाइम जो हीमोग्लोबिन बनाता है, अगर वो उसमें डिफेक्ट आ जाए तो हीमोग्लोबिन बनने में प्रॉब्लम आएगी, उस वजह से सेड्रोप्लास्टिक एनीमिया होगा। सेड्रोसाइट्स कंटेन्स नॉन हिम ग्रैन्यूल्स नॉन एज पेपनहेमर बॉडीज़। इनके पास जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो नॉन हिम होते हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इनको हम पेपनहेमर बॉडीज़ बोलते हैं। Siderocytes may or may not have a defect in heme or globin synthesis. Okay, जो सेड्रोसाइट्स हैं उनमें हो भी सकता है कि भी हेम सिंथेसिस में प्रॉब्लम हो, उनमें हो भी सकता है कि ना भी हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली अगर आपको पेपनहेमर ग्रैन्यूल्स या पेपनहेमर बॉडीज़ अगर आपको दिखाई देती हैं प्लस डिफेक्टिव एंजाइम है, सो दैट इज़ ए सिडरोप्लास्टिक एनीमिया। टॉकिंग अबाउट पर्नीशियस एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट। Pernicious anemia जो है that is also called as Addison's anemia, that is also called as Burmer anemia. ठीक है, Burmer anemia, Addison anemia और Pernicious anemia बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम याद रखो। Precious से याद रख सकते हो कि प्रीशियस थिंग्स हैं, ठीक है, और एडिसन से आप एडिडास याद रख सकते हो, और बर्मो से आप बर्मुडा ट्रायंगल याद रख सकते हो। 3 चीज़ों का ट्रायंगल है, बर्मुडा, एडिसन, एडिडास एंड प्रीशियस। वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। सो इसके अंदर क्या क्या आता है? इट इज़ सीन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो बहुत ही प्रीशियस हो रहता है, ठीक है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में होगी तो पर्नीशियस एनीमिया होगा। या फिर इरिथ्रोसाइट मैचुरेशन फैक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर। बेसिकली क्या होता है, विटामिन B12 इज इंट्रिंसिक फैक्टर, और विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एक्सट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो चाहे विटामिन B12 हो, चाहे एक्सट्रिंसिक हो, चाहे इरिथ्रोसाइट मैचुरेशन फैक्टर हो, तीनों की कमी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज का सबसे मेन डायग्नोस्टिक फीचर रहता है डीजनरेशन ऑफ posterior lateral tracts of spinal cord with loss of nerve fibers and degeneration of myelin sheath. Peripheral neuritis or neuropathy. Now tongue is beef-eared.
pernicious anemia में टंग काफ़ी आपको रेड कलर की दिखाई देगी इन कलर एंड कैरेक्टरिस्टिकली शो ग्लोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन, ग्लोसोडाइनिया, बंदे को पेशेंट को टंग में जलन महसूस होगी, ग्लोसोपायरोसिस, बर्निंग माउथ सिंड्रोम रहेगा. There is a gradual atrophy of papillas of the tongue resulting in ball tongue, which is often referred to as hunter glossitis or molars glossitis, which is similar to ball tongue of sandwich, which is seen in playground. सो ऑल दीज फीचर्स ऑफ टंग बेसिकली करेक्टरिस्टिक फीचर रहता है पर्नीशियस एनीमिया का. आरबीसी काउंट इसमें बहुत कम हो जाता है. आरबीसी काउंट 1 मिलियन से भी बहुत कम हो जाता है. बड़े बड़े सेल्स मैक्रोसाइटोसिस, पॉइकिलोसाइटोसिस, डिफरेंट एबनॉर्मल शेप हो जाती है आरबीसीज की. पॉलीक्रोमैटिक सेल्स हो जाते हैं, पॉलीक्रोमैटोफिलिक सेल्स, स्टिपल सेल्स हो जाते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स हो जाते हैं, हॉलन जॉली बॉडीज एंड कैबोट रिंग्स आर द लाइब्रेटिक फीचर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीशियस चीज़ों में प्रीशियस, जैसे कि प्रीशियस साउंड्स लाइक रॉयल्टी. ओके, सो हॉलैंड जॉली also sounds like a royalty. If you go in the UK and you like रॉयल चीज़ों का नाम ऐसा होता है, तो हॉलैंड जॉली या कैबोट रिंग आप याद रख सकते हो. बोन मैरो स्टडी रिवील्स immature रेड सेल्स और मेगाब्लास्टिक सेल्स. सो बेसिकली सेल्स बहुत बड़े हो जाते हैं पर्नीशियस एनीमिया में. तो उसकी जब आप हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स देखोगे तो बड़े बड़े सेल्स देखने को मिलेंगे. पॉलीमैक्रोसाइट्स, ओके, एंड पॉलीलोब्यूल न्यूक्लियाइज आपको देखने को मिलेंगे. एचएल सिक्रीशन इसमें भी कम हो जाता है. ओके, सो मेन थिंग इज beefier tongue, hunter glossitis, molar glossitis, bald tongue of sandwich, then glossitis, glossopyrosis, glossodynia, and holland bodies, cabot rings, megaloblast, and RBC count less than 1 million. So these are the features of pernicious anemia.